Electrochemistry is basically relationship between chemical reactions and electricity. The chapter is divided into three segments. I mean, the overall it is called electrochemical cell. All the electricity and chemical changes related thing taking place in a vessel, that is called electrochemical cell. The electrochemical cells are divided into three types. Galvanic cell, electrochemical cell that produces or transforms, not produces, that transforms chemical energy into electrical energy. Electrolytic cell, the electrochemical cell which transform, in which the electrical energy is transformed into chemical potential energy. Electrical energy is transformed into chemical potential energy. And the third one is conduction cell, where we try to see the movement of electron, movement of current through the electrolytes. Okay? How the electricity is passing, or how does electricity passes through an electrolyte, that part is studied in conduction cells. We use this principle to find flow of charge or through a solution, that is electrolyte. Electrolytic cell में non-spontaneous reactions, that is electrical energy getting transformed into chemical potential energy, or the transformation is taking place in a non-spontaneous reaction. That means you are forcing a reaction to take place against its will. तो डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा, वैसे रिएक्शंस को हम इसके थ्रू कराते हैं. यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उससे छोड़ दिया चीजों को, रिएक्ट करके हमको इलेक्ट्रिसिटी देगा. We use this principle to find equilibrium constant of various reactions having very low equilibrium constant. So ये basically utility of electrochemistry है. The principle of conductometric titration based on conductometry gives more precise results compared to volumetric titration. Volumetric titration में हम लोग अननोन एंटिटीज जिनका कंसेंट्रेशन अननोन है, उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के अगेंस्ट टाइट्रेट करके उसका कंसेंट्रेशन फाइंड करते हैं नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का. कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी यू कैन फाइंड इट. इनफैक्ट यू डू इट मोर प्रिसाइजली. ठीक है, मोर प्रिसाइजली क्यों? क्योंकि वहां पे जो कर्व्स होते हैं वो कुछ इस तरह के आया करते थे. बहुत कम वॉल्यूम एडिशन पे यू used to get great change in color, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते थे कि हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट यहाँ होगा. बट इसमें भी एग्जैक्टली कहाँ होगा, यू मे बी हियर, आपको लगेगा आप इक्विवेलेंट पॉइंट पे, बट आई मीन देयर इज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स इन दैट केस. यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है वो इस तरह का ग्राफ मिलता है. दो साइड के ग्राफ्स ले लिया आपने, उसको एक्सटेंड करके एक्स्ट्रापोलेट करके कट कराइए, ये आपका इक्विवेलेंट पॉइंट. तो यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेशन स्ट्रेट लाइन एक्स्ट्रापोलेशन होता है, इसलिए यहाँ पर एरर के चांसेस कम होते हैं या रिड्यूस्ड एरर रहता है. कर्व के लिए ये बोला था कि आप किस जगह पे हो, कितने वॉल्यूम पर आपको कलर चेंज मिल रहा है एग्जैक्टली, ये आप प्रिसाइजली नहीं समझ सकते. ठीक है, यहाँ पे एरर के चांसेस ज्यादा हैं. जैसे पीला दिखने लगा या फिर पिंक दिखने लगा, तो कौन सा पिंक, विच पिंक करस्पॉन्ड्स टू द न्यूट्रल पॉइंट. ठीक है, और जब न्यूट्रल पॉइंट आया, आप स्टार वगैरह कर रहे हो, तो एक बूंद पहले वो न्यूट्रल पॉइंट आया था कि एक बूंद पड़ने के बाद आया, ये डिसाइड कर पाना मुश्किल होता है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन. कंडक्टोमेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं है. शुरू के 2 पॉइंट लीजिए, आखिरी में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद के 2 पॉइंट लीजिए, दोनों को एक्सट्रापोलेट करिए एंड लीव इन पीस. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गोइंग टू गिव यू द वॉल्यूम. ये वाला पार्ट करना नहीं है आप लोगों को, जस्ट बता दिया मैंने. It also has as over volumetric titration in terms of care required close to equivalence. This gives more freedom and easiness to the users.
So at the time of equivalence point, जितने closer आप आते जाते हो, you have to be very cautious in putting the titrant. अगर वॉल्यूम थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, थोड़ा भी केयरलेसनेस हुए, the reaction or the titration is spoiled. You have to do it again. To user, compared to volumetric, conductometric titration gives more freedom to user, be more relaxed. Edge over volumetric, because conductometric gives easiness and relaxation to the users like us. Basic understanding of basics of electrochemistry. Pehla electrochemical cell, the device in which electrochemical behavior of reaction or a solution is studied. Conductometric cell, a device in which conductivity behavior of a solution is studied. It is also referred as conduction cells. Electrochemical cells are bifurcated into two types: galvanic cells or cell, or electrolyte and electrolytic cell, or voltmeter. Voltameter. ठीक है, voltameter is a device in which electrolysis takes place. उसको electrolytic cell बोलते हैं, voltameter. Galvanic cell principle and functioning. Galvanic cell is a device that runs on an spontaneous redox reaction. It furnishes electrical energy by converting chemical potential energy into electrical. तो galvanic cell क्या करता है? chemical potential energy को electrical energy में convert करता है. ठीक है? If complete redox reaction is allowed to take place in a single version, the electrical energy can never be furnished. What happens to that energy? Chemical potential energy directly gets converted into heat energy. ठीक है? So we intelligently keep reduction part and oxidation part of a reaction in two separate vessels and connect them via an electrical wire externally. This wire helps in conduction of electrons from oxidation vessel to reduction vessel, and we use this electricity to do our external work in form of electrical energy. दोनों को separate किया. अगर इलेक्ट्रॉन अंदर से अंदर चला जाता तो हीट एनर्जी मिलती. हमने उन दोनों को सेपरेट कर दिया और वायर से कनेक्ट कर दिया. वायर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो बीच में उसकी एनर्जी को हम इंटरसेप्ट करके बल्ब जला लेते हैं. ठीक है? So we are able to utilize electrical energy out of that chemical potential energy. फनी कैसे होगा? जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऑक्सीडेशन से वो रिडक्शन वाले में जा करके रिड्यूस कर देगा और एनर्जी निकाल देगा. देयर इज नो बैरियर. रिडॉक्स का हाफ रिएक्शन सेपरेट नहीं है तो एक साथ होकर के हीट एनर्जी देगा. सेपरेट कर दिया तो फिर इलेक्ट्रॉन देगा जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा और उसकी जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे हम अपना बल्ब जला सकते हैं. यस. जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, जो रिड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा. ऑक्सीडाइज वाला ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस वाला रिड्यूस हो गया. जो रिड्यूस हुआ उसने एनर्जी रिलीज करी, वो एनर्जी हीट एनर्जी बन गई. ठीक है? तो हम यूज नहीं कर पाए. अब दोनों को अलग अलग कर दिया और एक वायर कनेक्ट कर दिया. इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, वो वायर के थ्रू दूसरी तरफ जा रहा है, बीच में हमने उससे बल्ब जला दिया. ठीक है? तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर. क्लियर? Oxidation vessel is termed as oxidation half cell or anodic half cell, where oxidation takes place. Reduction vessel is known as reduction half cell or cathodic half cell, where reduction takes place. It was observed that every metal atom has an intrinsic ability to exist in equilibrium with its ions. So any metal atom और उसका ion हमेशा equilibrium में रहते हैं, provided they are put in solution.
Some metal have greater tendency compared to others. ग्रेटर टेंडेंसी मतलब इक्विलिब्रियम में रहने में कुछ मेटल की टेंडेंसी ज्यादा है कि वो अपने आयनिक फॉर्म में रहेगा, कुछ की कम टेंडेंसी है आयनिक फॉर्म फॉर्म करने की। ठीक है, तो जैसे अगर सोडियम या पोटेशियम लेते हैं तो इनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है आयन फॉर्म करने, वेर एज कॉपर को लेते हैं या सिल्वर लेते हैं तो इनकी टेंडेंसी बहुत कम आयंस फॉर्म करने, फॉर्म सब करते हैं लेकिन ये कम करते हैं और सोडियम पोटेशियम ज्यादा करते हैं। This creates a relative ordering of metals to exist in equilibrium with its ions. This relative ordering of metals plus compounds is termed as electrochemical series. जिसकी ज्यादा टेंडेंसी है आयन के फॉर्म में रहने की वो ज्यादा रिएक्टिव, जिसकी कम टेंडेंसी है आयन के फॉर्म में रहने की उसको कम रिएक्टिव बोलते हैं और उसी से बनता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई नो। So here I am representing that equation. A is giving us A aqueous N plus N electrons. इसकी दो चीजें होती है थर्मोडायनेमिकली देखे तो, एक तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज और दूसरा नॉर्मल एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कब होगा? जब चीजें स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, ये 1 मोलर हो, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, उस कंडीशन में जो डेल्टा जी होगा उसको हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी बोलते हैं। और बाकी किसी भी कंडीशन में टेम्परेचर को चेंज कर दो, कंसंट्रेशन को चेंज कर दो, उससे जो वैल्यू निकलेगी उसको बोलेंगे डेल्टा जी। ठीक है, प्राइमरी कंसंट्रेशन चेंज है। सिमिलरली ये हो रहा है, इसका डेल्टा जी नॉट 2 है। इफ डेल्टा जी नॉट 1 इज लेस देन डेल्टा जी नॉट 2, ये वाला छोटा है इससे, इसका मतलब क्या होगा? ये वाला ज्यादा फॉरवर्ड है कंपेयर टू ये वाला। जो जितना छोटा होगा, जिसका डेल्टा जी जितना छोटा होगा वो ज्यादा फॉरवर्ड है। डेल्टा जी नॉट जितना छोटा होगा उसका मतलब कि इक्विलिब्रियम उतना बड़ा होगा, माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, सो इफ डेल्टा जी नॉट 1 इज लेस देन जी नॉट 2, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज गोइंग टू बी, ठीक है चलिए, ये आगे के लिए समझाया है यहाँ पर। फिलहाल हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर क्या होता है वो समझ। Helmholtz double layer, if a metal rod is dipped into its ionic solution, some of the atoms from the rod may lose electron and leave this electron on the rod. So यहाँ surface पे जो atoms हैं इस rod के, A rod के, A atoms, they are going to lose their electron, और lose कहाँ करेंगे? वो metal rod पे छोड़ के आएंगे, खुद सॉल्यूशन में आ जाएंगे। इससे होगा क्या? यहाँ पर एक डेंसिटी बन जाएगी निगेटिव चार्ज की, और यहाँ पर एक लेयर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ, मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के सॉल्यूशन में आया। हाँ, यहाँ पे उसने एक लेयर बना लिया, सब जगह से छोड़ छोड़ के निकल रहा है। यहाँ पर एक लेयर पॉजिटिव आयन का बन गया और अंदर में यहाँ पर लेयर एक निगेटिव आयन का बन गया। ठीक है, this atom thus becomes a cation and enters into the solution. The concentration of cation will be higher close to the metal rod surface. This cationic aggregation close to metal rod surface forms a layer. This cationic layer together with electron layer at the surface of metal rod forms a positive charge and negative charge aggregation in form of layers. This is referred as Helmholtz double layer. ठीक है, राइट, दो लेयर है, डबल लेयर।
The potential difference between Helmholtz double layer is termed as electrode potential. ठीक है, क्या हुआ, किताब में दिया हुआ है क्या इसके बारे में? हाँ वो तो पता है, वो तो इंट्रिंसिक एबिलिटी के फॉर्म में समझाते हैं, वो दिया हुआ होगा, इस फॉर्म में नहीं दिया होगा। क्या बोल रही है? एजीजी होगा। थैंक यू, करेक्ट कर लेता हूँ। मुझे भी लग रहा था, बट किसी ने करेक्शन बोला नहीं तो मैंने किया नहीं। अच्छा, ये बच्चे भी शुरू शुरू में जो थे बोलते थे करेक्शन, बाद में समझ गए कि सर की कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर उन्होंने सजेस्ट करना बंद कर दिया। अच्छा, हम लोग नोट कर लेते हैं, ए जी जी एग्रीगेशन, ये तो एग्रीकल्चर वाला हो गया। ए जी जी एग्रीगेशन, ठीक है। अच्छा, वहां पे जो दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अगर हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर के बेसिस पर नहीं कर रहे हैं हम लोग डिस्क्राइब, तो वी डिस्क्राइब इट एज द इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ metal ion to exist in equilibrium is quantitatively expressed by electrode potential, ठीक है। The intrinsic ability of metal and metal ions to exist in equilibrium, ठीक है, is quantitatively described by electrode potential. The metal rod dipped in solution is referred as electrode, and thus electrode is a device through which electrons leave or enter the half cell reaction. The absolute value of electrode potential for any metal ion system is impossible to be technically determined. क्यों? क्योंकि जैसे सपोज मुझे इस डबल लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक वायर कनेक्ट करूंगा। वायर कहाँ कनेक्ट करूंगा? इस पर मेटल पे, और फिर उसको डिप करूंगा सॉल्यूशन में, ठीक है, सो दैट इस वाले लेयर का पोटेंशियल ले सकूं। तो अब जैसे ही डिप किया, तो वो भी जो होगा वो मेटल वायर होगा, तो मेटल वायर होगा, तो उसके अबाउट भी एक डबल लेयर बन जाएगा। तो बेसिकली हम मेटल और उसके डबल लेयर के बीच के बदले, मेटल रोड और डबल लेयर के बदले, उसके डबल लेयर के बदले हम जो नया मेटल डाले हैं उसके डबल लेयर और इसके डबल लेयर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे होंगे। ठीक, ठीक है। अगर मुझे इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मुझे क्या करना होगा, वोल्टमीटर के एक एंड को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा और एक एंड को यहाँ पे डिप करना होगा, द सो दैट मैं इसके कांटेक्ट में आ पाऊं। द मोमेंट आई डिप इट इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी मेटल रॉड है, ठीक है, वो अपना एक अलग हेल्महोल्ट्ज लेयर फॉर्म करेगा। ऑब्वियसली वोल्ट मीटर का जो ये होगा वो वायर ही होगा ना। हाँ, तो अब क्या हुआ, आप मेजर करने चले थे इस मेटल रॉड और इसके हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर का पोटेंशियल डिफरेंस, आप मेजर क्या करने लगोगे, इसका और वोल्ट मीटर के ये का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आप कुछ मेजर करने चले थे, आपको मिलेगा कुछ और। तो इसलिए इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी मेटल आयन सिस्टम। तो अब हम करते क्या है, as whenever we attempt to measure the potential difference between one Helmholtz double layer, we tend to introduce another Helmholtz double layer and end up measuring potential between two different Helmholtz double layers, ठीक है। Thus, we have developed a relative electrode potential concept where one of the electrode ion system is taken as a reference electrode
with zero electrode potential and others are calculated using this reference electrode. तो एक इलेक्ट्रोड के वैल्यू को हमने आर्बिट्रली जीरो मान लिया और बाकी सारे इलेक्ट्रोड्स का उसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं और वहीं उसको असाइन कर देते हैं. अब यहाँ पर the electrodes are of two types, cathode and anode. Electrode at whose surface reduction takes place is cathode. Anode जिस पर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है. यहाँ पर रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर जीरो पॉइंट किसको लिया है, जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको असाइन किया है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है उसका डिस्क्रिप्शन इस वाले लेक्चर में अंदर में मिलेगा. वेलकम टू दैट. हाँ, अब यहां पर आ जाते हैं. ये जो चीज लिखी हुई है लेटर से दो एटम्स है, दो मेटल एटम्स है. क्या बढ़ा दे मतलब ठंड लग रही है. बढ़ क्यों नहीं रहा. हो ही नहीं रहा. बोल रहे आप नहीं हो. चलो किस्मत अच्छी है तुमने, 5 से बंद कर गया, नहीं तो आज फ्रीजिंग हो जाती थी. हाँ, तो ये दो रिएक्शंस हैं, दो मेटल मेटल आयन सिस्टम्स हैं जिसकी वैल्यू कम रहेगी, वो ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी जो होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी जितनी इलेक्ट्रोड पे बिल्डअप होती है इसको हम इलेक्ट्रॉन प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, जो कि अब आने वाला है. सो ए प्लस सिस्टम जो होगा इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन प्रेशर कम रहेगा. ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉन प्रेशर जो है ये डिसाइड करेंगे हमारे लिए कि इलेक्ट्रॉन किसके तरफ से किसके तरफ जाएगा, रॉड ए से बी पर जाएगा कि बी से ए पर जाएगा. ठीक है. In galvanic cell at anode, cations are generated from neutral atoms leaving behind their electrons on the anode. The anode thus works as a potential reservoir of electrons in galvanic cell. ये बात की चीजें हैं जो मैं बात. हाँ, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है that is going to work as a potential reservoir for electrons. हाँ. When metal atom from electrode detaches its electron and leave these electrons on the electrode, the atom gets converted into cation and enters the solution. The electrons left behind over the electrode creates a bulk and can be referred as electron pressure or simply electrode potential. The electrode potential is an indicator of equilibrium electron pressure that can be created on an electrode in an electrode electrolyte system. Thus, different electron electrolyte system will have different electrode potential, that is different equilibrium electron pressure depending upon their intrinsic abilities.
नहीं, उनकी खुद की इंट्रिंसिक एबिलिटी टू कम इनटू आयनिक फॉर्म, ठीक है, not the natures of other thing, their own intrinsic ability to lose their electron easily, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस वगैरह पे वो एक्सटर्नली होता है, बट ये इनकी प्राइमरली इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन प्रेशर बेटा, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जब एटम कटायन बन के सॉल्यूशन में चला गया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे रह जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर रह गए हैं, दे आर गोइंग टू क्रिएट सम प्रेशर। नाउ पिछले वाले में जाएंगे अगर, तो जिसका डेल्टा जी कम था उसका इलेक्ट्रॉन प्रेशर ज्यादा होगा, और दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन प्रेशर कम होगा। जिस पर इलेक्ट्रॉन प्रेशर कम होगा उधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। राइट, राइट, तो उस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्रिएट होंगे, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन कम क्रिएट होंगे, प्रेशर इधर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स लोअर प्रेशर, ठीक है। रिएक्शंस के ही बेसिस पर होता है। An electrode electrolyte system having greater electrode potential, oxidation potential, will work as anode or anode half cell, whereas one having lower oxidation electrode potential will behave as cathode or cathode half cell. Yes. It is also important to note that reduction is opposite process of oxidation. Thus, E naught A to A plus is equal to minus E naught A plus to A. ये ऑक्सीडेशन हुआ और ये रिडक्शन हुआ। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये नॉट जो है ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर सारी चीजें ही बता दी हैं मैंने, बट ये आगे आने वाला है, so I'll not discuss this time over here. किसी ने कुछ डाउट पूछा या जो भी है वो वहीं पे डिस्कस कर दिया है। ओके, when a beaker containing a metal rod metal ion system is studied in isolation, the metal rod will develop as a reservoir of electron, and electrolytic solution will develop as positively charged solution। नहीं, एक ही सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन लिया उसके अंदर उसका मेटल रॉड डाला, तो मेटल रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा, और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा। सो metal rod will develop as a reservoir of electron and electrolytic solution will develop as a positively charged solution. If another beaker having some other metal rod system is taken, this system will have different electrode potential compared to the first one. The metal rod metal ion system having greater oxidation electrode potential will serve as an anode when both the electrodes are connected with a wire to allow flow of electrons. However, merely joining the two electrodes externally with wire leads to another set of problems. क्या set of problem होगा? तो इलेक्ट्रॉन जिधर ज्यादा था उधर से इलेक्ट्रॉन तो चला गया कम वाले इलेक्ट्रॉन पे, बट पॉजिटिव चार्ज जिधर ज्यादा था उधर से पॉजिटिव चार्ज कम वाले की तरफ तो गया नहीं, ठीक है। दो बीकर हमने लिया था, एक में ज्यादा निगेटिव चार्ज था और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज भी था, दूसरे वाले में कम निगेटिव चार्ज था रॉड पे और कम पॉजिटिव चार्ज था सॉल्यूशन पे। अब क्या हुआ, आपने एक्सटर्नली वायर से रॉड्स को कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया जहां ज्यादा था वहां से कम वाले में, बट आपका कटायंस जो सॉल्यूशन में है उनका तो ट्रांसफर हुआ नहीं। तब क्या होगा, दैट इज क्रिएटिंग द अनदर सेट ऑफ।
As the electrons from electrode having higher oxidation potential, let us call it electrode 1, and represented by A plus, moves to electrode having lower oxidation potential. This is electrode 2 represented by B plus to B solid. More A atoms will lose their electrons and enter into electrolytic solution, already having A plus ions. This will make electrolytic solution with electrode 1 much richer in A plus ion, that is buildup of positive charge. This will develop an excess of positively charged A plus ions in the solution, and thus higher positive potential in electrolytic solution of A plus. This will prevent any further oxidation of A solid atoms into A plus ion. Similarly, in other beaker, the electrode 2 gets electrons which combine with B plus ions in the solution and settles at the surface of electrode. Basically, जब हमने कनेक्ट कर दिया और इलेक्ट्रॉन आया तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. पहले ही वो इक्विलिब्रियम में था, अब अगला इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इधर से एक बी प्लस आयन जो है वो उस पर चिपक जाएगा. ठीक है, रॉड के ऊपर, और न्यूट्रलाइज होकर के सेटल कर जाएगा. This leaves electrolytic solution in the beaker excess with anions. Anions कैसे excess हो गए? ए से नहीं गया, अनायन ए से नहीं गया, ए से तो सिर्फ चार्ज गया, इलेक्ट्रॉन गया. ठीक है, अब ये एक्सेस कैसे हुए? तो जो आप मेटल आयन डाल के रखे हो, तो मेटल आयन अकेले तो डालोगे नहीं, उसका कोई सॉल्ट डालोगे, तो कटायन के साथ साथ अनायन भी रहेगा. तो अगर आपका एक अनायन डिस्चार्ज होकर के बैठ गया मेटल रॉड पे, तो आपका जो उसका करस्पॉन्डिंग अनायन था वो एक्सेस हो जाएगा. सो सॉल्यूशन में समझो 5 कटायन 5 अनायन थे, NaCl, 5 Na 5 Cl. एक Na जाकर के बैठ गया इलेक्ट्रॉन लेकर के, अब हो गए 4 Na प्लस और 5 Cl माइनस. एक और जाके बैठ गया तो 3 5, तो ये एक्सेस हो गया. ठीक है, this leaves electrolytic solution in this beaker excess with anion. The source of this anion could be dissolved salt of cation B or solvolysis of solvent, breaking down of solvent into cation and anion. जैसे H2O H plus और OH minus में ब्रेक किया, इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं. दैट इज एक्सेस नेगेटिव पोटेंशियल इन द सॉल्यूशन. तो जो कम ऑक्सीडाइज होने वाला मेटल मेटल आयन सिस्टम होगा, उसके सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन आने के बाद, और इधर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है दूसरे वाले बीकर के सॉल्यूशन में. This prevents any further electron move towards electrode 2. कनेक्ट कर भी दिया आपने तो थोड़ी देर बाद प्रोसेस ऑटोमेटिकली रुक जाएगा. क्यों? क्योंकि इधर ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया और इधर आ नहीं रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो गया है. तो आपका सिस्टम फिर से बंद हो. पॉजिटिव चार्ज जो है Ba प्लस B1 B प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रलाइज हो गया और वो रॉड के ऊपर बैठ जाएगा. These two phenomena will stop the flow of electrons from one electrode to another as soon as they are connected. अब इसको फिर से फंक्शनल बनाने के लिए क्या करेंगे? In order to overcome this, we use a salt bridge in galvanic cell to facilitate number 1 charge neutrality in two half cell. ये salt bridge कैसा होता है? इधर ड्रॉ किया होगा मैंने. ये salt bridge है हमारा. इधर जो एक्सेस चार्ज था सॉल्यूशन में उसको शिफ्ट करेगा दूसरी तरफ, या इधर से नेगेटिव आयन को शिफ्ट करेगा इधर, तो चार्ज एक्सेस खत्म हो जाएगा दोनों तरफ का.
सो ये काम पहला इसने किया, चार्ज न्यूट्रलिटी इन टू हाफ सेल बाय ट्रांसफर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस अमंग टू हाफ सेल्स। ठीक है, थ्रू जाता है। दूसरा, this helps in continuous supply of electricity from the cell, otherwise रुक जाता। तीसरा, the transport number of a cation and anion must be same in order to क्या क्या, सॉरी, क्या हुआ? अच्छा, वो मेंटेन नहीं है प्रॉब्लम मेरी, मेंटेन इज ए स्मॉलर प्रॉब्लम। नहीं बेटा, 150 साठ, एकदम। क्या हुआ? मुझे भी निकालना है। हाँ, 115 सार। ठीक है, जंक्शन पोटेंशियल बहुत सिंपल सी चीज है। ये इलेक्ट्रोलाइट और ये इलेक्ट्रोलाइट आपस में एक साथ मिल गए होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये दोनों इंटरमिक्स हो जाते हैं और इसमें इनकी केमिकल एनर्जी गायब हो जाती है। ठीक है, इसको प्रिवेंट कर रहा है, इस लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, ये प्रिवेंट नहीं कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। कैसे मिनिमाइज कर रहा है? इन दोनों को सेपरेट कर दिया, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दिया। अब सॉल्ट ब्रिज कनेक्शन की वजह से इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। बट यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है। इसके यहाँ पे वुल लगा हुआ होता है, एक लेयर ऑफ वुल, जिससे, हाँ, जिससे हो करके आयंस मूव कर। ठीक है, वुल या कॉटन या फिर अगर अगर जेल होता है जिसके थ्रू डिफ्यूज करते हैं। तो अभी पॉइंट क्या है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आया, बट इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में भी चूंकि किसी भी टाइप का कांटेक्ट होगा तो कांटेक्ट हैज टू बी देयर, नहीं तो आयंस का मूवमेंट, मास का मूवमेंट हो ही नहीं सकता है। तो indirect contact में भी there is certain amount of losses that takes place। ठीक है, रेसिस्टिव लॉसेस होंगी, ऑब्वियसली डिफ्यूज कर रहा है उल से बुल्स के थ्रू, तो फ्रिक्शनल लॉसेस कुछ रहेगा। नाउ दोस फ्रिक्शनल लॉसेस और other such losses will be there, but majority of junction potential losses which would have been there has been prevented। तो देयरफॉर यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, they would have been in direct contact leading to major losses। That means salt bridge minimizes junction potential losses। Is that okay? ट्रांसपोर्ट नंबर क्या था? फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन, मतलब कटायन और अनायन जितना जितना करंट टोटल कैरी कर रहे हैं डिवाइडेड बाय द करंट कैरिड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन। 2 और 3 का एग्जांपल लिया मैंने, कटायन 2 यूनिट कैरी कर रहे हैं, अनायन 3 यूनिट कैरी कर रहे हैं, टोटल करंट 5 यूनिट कैरी हो रहा है। कटायन का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/5, दैट इज 0.4। अनायन का 3/5, दैट इज 0.6। न्यूट्रलिटी दोनों में मेंटेन करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बीच में, एंड देयर बाय इट एनहांसेस द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती है हमको सॉल्ट ब्रिज पिक करने में, वो नीचे डिस्कस किया होगा मैंने। इस पे आता हूँ मैं। The salt bridge in the salt must have cation and anion whose transport numbers are equal in order to avoid
potential buildup in salt bridge. तो कटायन और अनायन जो है इन दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर एग्जैक्टली इक्वल रहना चाहिए, so that exactly या almost equal रहना चाहिए, so that there should not be any potential difference getting developed inside the salt bridge or in the solutions. ठीक है. The junction potential, liquid junction, the potential developed in an electrolytic solution during an electrochemical reaction due to excess of ions in the respective half cell of galvanic cell is called junction potential. एक और इसमें होता है, वो क्यों नहीं लिखा है, एक सेकंड रुक जाओ. एक और पॉइंट है, हाँ ये वाला है, फिर मैं उधर आता हूँ. Electrolyte in the salt bridge should consist of ions, cation or anions, which must not form precipitate with ions being transported between two half cells. जो आयंस ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में, उनके साथ इनका ना तो कटायन ना ही अनायन शुड बी फॉर्मिंग एनी प्रेसिपिटेट, क्योंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म जैसे ही किया इस ट्रांसपोर्टेशन के ये से बाहर आ जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, इट विल बी यूजलेस एंड योर सेल विल बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है. जनरली वी यूज KNO3 और KCl और अमोनियम नाइट्रेट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज. इसमें से KCl को वी कैन नॉट यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज इफ एनी ऑफ द हाफ सेल either oxidation or reduction has Ag plus ion in them, as Ag plus will combine with Cl minus ion of the salt bridge to form AgCl precipitate. Is that okay? Now let us be back to this. यहाँ पर मूवमेंट ऑफ करंट, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एनोडिक हाफ सेल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेशर ज्यादा होगा, रिडक्शन हाफ सेल. ठीक है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेशर कम होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, करंट का मूवमेंट उल्टा टू द इलेक्ट्रॉन. सो करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, कैथोडिक हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल टू एनोडिक हाफ सेल. इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, एनोडिक हाफ सेल टू कैथोडिक हाफ सेल, एक्सटर्नल सर्किट में. इंटरनल सर्किट में क्या होगा, इसके उल्टा होता है, करंट गोज फ्रॉम एनोडिक हाफ सेल टू कैथोडिक हाफ सेल इनसाइड द सॉल्ट ब्रिज. ठीक है. सो करंट यहां से चला, इधर आया, ऐसे होकर के वापस. ठीक है. एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लो RHC टू OHC, इलेक्ट्रॉन फ्लो CHC टू AHC. क्या हुआ, R is reduction half cell to oxidation half cell और कैथोडिक हाफ सेल टू एनोडिक हाफ सेल या कैथोड टू एनोड. क्या चीज, एक्सटर्नल. करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम OHC टू RH, करंट के फ्लो के ऑपोजिट. इंटरनल सर्किट में करंट OHC टू RHC फ्लो करता है और AHC एनोडिक हाफ सेल टू कैथोडिक हाफ सेल. Internal current does not flow from anode to cathode as these electrodes are non-participative in charge/ion movement. ये जो करंट है ये हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोलाइट फ्लो करता है, नॉट फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड. ठीक है. ये इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड फ्लो करता है, ये सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन फ्लो करता है. ठीक है. Internal current flows from electrolyte of OHC to electrolyte of RHC via salt bridge. Salt bridge होता क्या है, U-shaped U tube filled with an electrolytic salt and fitted with cotton wool or agar-agar gel at two openings in order to prevent direct mixing of salt bridge electrolyte with electrolytes and two half cells.
electrode potential can be represented as oxidation electrode potential or reduction electrode potential. A2 An plus n electrons, An plus is equal to x volt. This is oxidation electrode potential. An plus plus n electrons giving us A solid. This is reduction electrode potential. Oxidation electrode potential is equal to negative of reduction electrode potential, or reduction electrode potential is equal to negative of oxidation electrode potential. As we know that electrode potential of any electrode electrolyte pair cannot be measured absolutely, hence we have developed a relative electrode potential value by choosing one of the electrode electrolyte as a reference point. There are two such relevant and important electrode electrolyte reference system referred as reference electrode. Actually एक ही reference electrode है, ठीक है? This is this electrode, हाइड्रोजन electrode इसको बोलते हैं. बट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ साथ एक इसको भी, इस इलेक्ट्रोड को भी हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, बट इसको जीरो वैल्यू नहीं असाइन किया है. इसको वो वैल्यू असाइन किया है जो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसको मिलेगा. सिर्फ कैलकुलेट करते टाइम हम इसको यूज करें या इसको यूज करेंगे, दोनों में से किसी एक को यूज करें, ये जीरो होता है. इसके रेस्पेक्ट में इसकी कुछ वैल्यू है विच इज 2.27 वोल्ट, ठीक है. अब इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि इट इज नॉट अ पोर्टेबल सिस्टम, प्लस प्रेशर के साथ ये चेंज करेगा, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे कंट्रोल में नहीं, ठीक है. तो नॉन पोर्टेबिलिटी एंड डिपेंडेंसी ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेक्स इट unsuitable to be used all the time, ठीक है. क्या? क्योंकि सारी चीजें इसमें लिक्विड है, अभी याद नहीं रहेगा, नहीं तो ये पूछा भी नहीं जाएगा, परेशान मत. इंफॉर्मेशन अनसुटेबल बिकॉज सारी चीजें यहाँ पर लिक्विड में है, प्लस प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंसी होती, ठीक है. इसकी वजह से इसको हमने अगेन एक रेफरेंस की तरह यूज करते हैं. अब समझो इसके रेस्पेक्ट में किसी इलेक्ट्रोड की वैल्यू 2.1 है, ठीक है. तो इसके बदले अगर इसको यूज करेंगे तो उसकी पोटेंशियल क्या आएगी, 2.17 माइनस 0.27, ठीक है. या ऐसे समझो कि यहां पर अगर किसी चीज का डिफरेंस आया या कोई दूसरा इलेक्ट्रोड यूज किया, उसका डिफरेंस आया 1.7, तो फिर इसके रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंस रहेगा. सो एक चीज जो 0.27 पर है उसके रेस्पेक्ट में कोई चीज 1.7 है, तो जीरो वाले के रेस्पेक्ट में वो कहाँ है, 1.7 प्लस 0.27 दैट इज 1.97. सो इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते, ठीक है. और इसके साथ पॉजिटिव चीज क्या है कि सारी चीजें सॉलिड है मोस्ट या पेस्ट फॉर्म में, तो इसका प्रेशर के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, पोर्टेबिलिटी बेटर होगी. हेलो, बोलो. H2 को ब्लो इन किया, ये प्लैटिनम रॉड डाला हुआ है, इससे वायर कनेक्टेड है. यहाँ पर एक सॉल्यूशन ले लिया है किसी भी एसिड का, 1 इक्विवेलेंट ले लेंगे डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर. 1 मोलर HCl ले लें या हाफ मोलर H2SO4 ले लो या कोई भी और ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, बस ये होना चाहिए कि 1 मोलर इन H प्लस होना चाहिए, ठीक है. हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, H2 हाफ H2 गिविंग H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड हो जाएगा H प्लस प्लस E माइनस गिविंग अस हाफ H2. इन दोनों के लिए E नॉट जो होगी वो जीरो हो जाएगी, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन,
ठीक है, जीरो का निगेटिव जीरो ही होता है। चलिए, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कैलोमेल। कैलोमेल क्या होता है? ये जो कंपाउंड है इसका नाम कॉमन कैलोमेल होता है। ठीक है, इधर KCl सॉल्यूशन डालते हैं ऊपर में, पेस्ट ऑफ Hg2Cl2 डालते हैं, और नीचे में मर्क्यूरी डाल के रखते हैं। यहाँ पर भी हमने प्लेटिनम रॉड डाल रखा है, एक पाइप से होता हुआ जो नीचे तक गया हुआ है। और यहाँ, और इस सिस्टम को बोलते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड। यहाँ हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन अगर देखें तो 2Hg प्लस 2Cl माइनस इज गिविंग अस Hb2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीडाइज करते टाइम देता है और रिड्यूस करते टाइम उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है Hg2Cl2 का रिडक्शन पोटेंशियल जो है SRP दैट इज 0.27 वोल्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस 0.27 वोल्ट। इज दैट ओके? स्टैंड SRP क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। Standard electrode potential under standard condition, that is temperature 298 for gas, pressure is 1 atm, for solution concentration is 1 mole, is referred as standard electrode potential. अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिए हैं तो फिर उसको जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है यानी प्रेशर 1 atm नहीं हो करके 0.1 atm या कोई भी और atm, कंसेंट्रेशन 1 मोलर ना हो करके कोई भी और मोलर, इट विल बिकम नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, galvanic cell is always a combination of two half cells, RHC and OHC. The cell potential of a galvanic cell is algebraic sum total of electrode potential of two half cells. Here, we also need to keep in mind that the electrode having higher oxidation potential will act as anode, whereas one having lower oxidation potential will work as cathode or reduction. ठीक है, higher oxidation potential मतलब anode, higher sorry lower oxidation potential मतलब cathode. ठीक है, in other words, anode will have lower reduction potential and cathode will have higher reduction. Are we getting this point? हायर रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कैथोड, और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल मतलब एनोड। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ पर दूसरे तरीके से उसी चीज वही चीज लिखी हुई है, इलेक्ट्रोड हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल वर्सेस कैथोड और रिडक्शन इलेक्ट्रोड, वेयर एज वन हैविंग लोअर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल वर्क एज एनोड और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। Zn2 plus 2 Zn is minus 0.76 volt. Chromium 3 plus 2 chromium minus 0.74 volt. Cadmium 2 plus 2 cadmium minus 0.40 volt. Enod cobalt 2 plus 2 cobalt is minus 2.28. ठीक है, अभी यहाँ पर हमने मैंने पूछा क्या है कि चार इलेक्ट्रोड पेयर्स लिए हमने, और अच्छा, एक क्वेश्चन ये बेसिकली कराने की कोशिश कर रहा हूँ सेल पोटेंशियल्स वगैरह निकालने का, या फिर अगर ये इलेक्ट्रोड को हमने लिया तो विच इज गोइंग टू वर्क एज कैथोड एंड विच इज गोइंग टू वर्क एज एनोड।
ठीक है, या ये और ये लिया तो कौन क्या काम करेगा, ये और ये लिया तो कौन काम करेगा, ये लिया, अलग अलग पेयर्स बना करके। ठीक है, तो सी इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे कम है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो अपने साथ वाले किसी के साथ भी जाएगा तो वो हमेशा एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये इसका तीनों में से किसी के साथ पेयरिंग अप कर देंगे, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू वर्क एज एनोड। ये इसके साथ कैथोड का काम करेगा, बट बाकी दोनों के साथ एनोड का काम करेगा। ठीक है, ये इसके साथ एनोड का काम करेगा, बाकी दोनों के साथ कैथोड का काम करेगा, और ये सबके साथ यूनिवर्सली कैथोड का काम करेगा। If Zn2 plus Zn and Cd2 plus Cd electrodes are taken to form a cell, this is going to work as anode as it has lower electrode with potential value than Cd2 plus Cd. And this will work as cathode as it has higher reduction potential. Cd2 plus and CO2 plus electrodes are taken to form a cell, then Cd2 plus Cd will work as anode as its electrode potential is smaller than cobalt electrode, which in turn will work as cathode. ठीक है, अच्छा इससे क्या हो रहा है, अब देखो कोई भी दो सेल्स लिया हमने, हाफ सेल ले लिया, कैडमियम वाला लिया और कोबाल्ट वाला लिया। ठीक है, ये कोबाल्ट का रिडक्शन हुआ और ये कैडमियम का रिडक्शन हो रहा था। इस कैडमियम के रिडक्शन को हम उल्टा करेंगे तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन होने लगेगा। ठीक है, तो इसकी कोबाल्ट वाले की वैल्यू कितनी है, -0.28, कैडमियम वाले की -0.0। इसको उल्टा कर दिया आपने तो इट विल बिकम +0.40, और इसकी वैल्यू -0.28 ही रही। दोनों को ऐड करेंगे तो +0.12। ठीक है, ये सेल स्पॉन्टेनियसली रन करेगा क्योंकि इसका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव। ठीक है, सेल पोटेंशियल में हमने किया क्या, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, या तीसरा चीज हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। Standard cell potential is equal to standard reduction electrode potential of cathode plus minus standard reduction electrode potential of anode या oxidation electrode potential of anode। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूलेज बनते हैं हमारे। जनरली हम रिडक्शन पोटेंशियल डेटा हमको दिया होता है। ठीक है, पूरी टेबल जो टेबुलेटेड होती है उसमें हमको रिडक्शन पोटेंशियल डेटा दिया है। हाँ एग्जैक्टली, तो रिडक्शन पोटेंशियल डेटा अगर मेरे पास है तो ये वाला इंफॉर्मेशन जो है दिस बिकम्स यूज। ठीक है, उसका माइनस ले लेना है। एसआरईपी की वैल्यू, हाँ एसआरईपी जो भी वैल्यू दिया रहेगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें -1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये तीनों फॉर्मूले हो गए। मैं जनरली इसको यूज किया करता था, बट मेरा यूज करने का मतलब मैं बेसिकली रिएक्शन के फ्लो में जाता था, तो मेरे लिए ये कन्वीनियंट होता है। ठीक है, और बट जनरली फॉर्मूला याद करके अगर आप करते हो तो दिस इज कन्वीनियंट, क्योंकि डेटा आपको इसी फॉर्म में रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दी होती है और फॉर्मूला के थ्रू करना है, तो आप ऐसे करोगे तो इट विल बी इजी है। बाकी ये दो फॉर्म इसलिए दे दिए जाते हैं क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में कभी पूछ लिया तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट एटलीस्ट। अभी यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड और लिए SN2 + 2SN,
इसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल -0.14 वोल्ट है, और ये क्लोरेट आयन है। क्लोरेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल पर क्लोरेट में हो रहा है, पर क्लोराइड में हो रहा है, पर क्लोराइड में हो रहा है। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.35 है, इसका सेल पोटेंशियल कितना होगा? तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, मतलब ये कैथोड का काम करेगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल छोटा है, मतलब ये एनोड का काम करेगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड is cell potential. So 0.35 minus of minus 0.14, that is plus 14. 0.35 plus 0.14 is plus 49. That is our cell. Find the cell potential of following cells consisting of pair of electrodes as given. Li plus and Fe2 plus Fe. दोनों के वैल्यू दी हुई है। कौन सा एनोड का काम करेगा, कौन सा कैथोड का काम करेगा, दैट हैज टू बी डिटरमाइंड एंड यूज। यहाँ पर क्वेश्चन करते टाइम मैंने ये कर दिया है तो हमारे लिए आसान हो गया। शुरू में ये दिया नहीं था ब्लू मार्क करके, कोहेरेंसी के लिए मैंने कर दिया। नहीं, वो हर जगह पे लिखा है, अलग अलग है, ध्यान से देख, वो भी समझाते टाइम ही लिखा है। ठीक है, क्या टोटल में से एक माइनस? पेन और पेपर निकालो। सेल पोटेंशियल पता है, वही वैल्यू निकाल लो। चलो पेन निकालो, पेपर निकालो, फटाफट करो। कौन सा एनोड के काम करेगा, कौन सा कैथोड का काम करेगा, सबसे पहले ये ढूंढना है। ठीक है, और डेटा सारे ध्यान से देखना और रीड करना, उस्ताद मत बनना तुम लोग। हर जगह पर रिडक्शन ही है ऐसा नहीं है, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ध्यान से करिएगा। वैसे तो सॉल्यूशन मतलब आंसर दिया ही हुआ है, बट स्टिल अ वर्ड ऑफ कॉशन। एल आई एनोड हो जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट। चलिए फिर दूसरा वाला करिए, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा। क्या बोल रहे बेटा? नहीं नहीं, रिडक्शन ही हो रहा है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाएगा ना बेटा, M2 से माइनस। नहीं नहीं, बट डेटा मतलब डेटा को सही से देखना और इंटरप्रेट करना। इंटेलिजेंट हो गए। क्या नहीं कह रहे, नजर नहीं लगाओ।
हो नहीं 1.36 है, माइनस कहाँ दिख रहा है मुझे तो नहीं। गॉड पार्डन। वेरी गुड।
Pb2 प्लस पॉजिटिव है, के प्लस नहीं, एनोड हमारा ये होगा के प्लस। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है ना, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोअर है, तो ये एनोड कैथोड का काम करेगा। माइनस कैसे आएगा? कैसे आएगा? एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अप्लाई, नाक तोड़ दूंगा उल्टा पुल्टा कर। इसलिए ध्यान से डेटा को ध्यान से इंटरप्रेट करना है। जनरली आप लोगों को इस तरह का ही डेटा मिलेगा जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल है, बट कभी अगर सरप्राइज कर देता है डेटा, तो एक फ्लो में नहीं रहना चाहिए हमें। वी हैव टू लुक एट और रीड द डेटा प्रॉपर। दैट्स द इम्पोर्टेंट टास्क एज अ स्टूडेंट। ठीक है, आज क्या हुआ? 1:05 हो गया ना, चलो आज के लिए खत्म करते हैं।